Assalamualaikum students, hope all of you are fine. Today's lecture is about acidity of terminal alkynes. Let's start with this topic, and that what is meant by the acidity of terminal alkynes. Okay. As you know that acid have property to donate proton, okay, like sulfuric acid. So after, just for example, if you will write sulfuric acid over here, by donation of proton there is formation of bisulfate ion along with the donation of proton. There are some organic compounds that having this property, and that is because after losing the proton there is negative charge over the oxygen atom, and oxygen is electronegative element, therefore it can sustain the negative charge. Okay. Therefore it is it is showing this result that it is losing proton. ठीक है, सल्फ्यूरिक एसिड क्या करता है कि प्रोटॉन लॉस करने के बाद बाइसल्फेट आयन बना देता है, तो यानी कि एक आपके पास कैटायन फॉर्म हो गया और एक एनाइन. सो नाउ आवर मेन कंसर्न इज़ विद alkynes. ठीक है, that is we can take the example of simple ethyne, that is an simple alkyne. ठीक है, अब basically what is main thing in alkyne here, this carbon is involved sp hybridization. Okay, and what does it mean that one s and one p orbital of central carbon atom is going to make bond with another carbon atom and with the hydrogen atom, therefore it is known as sp hybridization, having one sigma bond and two pi bond. In sp hybridization always there is 50% s character and 50% p character. Okay, and 50% s character directly relates to the electronegativity. I am abbreviated it like this, E dot n. Okay, it's mean that as we know that negative charge is more stable over the negatively charged species. So as the s character in any hybridization is very much high, स्पेशली इन द केस ऑफ एस पी करेक्टर एज़ कम्पेयर टू sp2, जहाँ पे उसका s करेक्टर ऑलमोस्ट 33% होता है और sp3 में p का कंट्रीब्यूशन ज़्यादा हो जाता है, sp3 मीन 1s एंड 3p ऑर्बिटल्स. तो इसका मतलब क्या हुआ कि s का करेक्टर सिर्फ 25% रह जाता है, बाकी 75% ऑलमोस्ट जो करेक्टर है वो p ऑर्बिटल का आ जाता है. तो इट्स मीन दैट जब भी आपके पास sp करेक्टर हो, किसी भी हाइब्रिडाइजेशन हो, ठीक है, किसी भी कंपाउंड के अंदर, तो उसमें अगर sp हाइब्रिडाइजेशन है तो s कैरेक्टर मीन काफ़ी ज़्यादा है उस सेंट्रल कार्बन एटम का, और s कैरेक्टर इज डायरेक्टली रिलेटेड टू द इलेक्ट्रोनेगेटिविटी. देयरफॉर एनी बेस ओवर हियर यू कैन राइट डाउन एनी बेस. ठीक है, फॉर एग्जाम्पल आई एम टेकिंग ओवर हियर हाइड्रोक्साइड, इट कैन एब्स्ट्रैक्ट दिस प्रोटॉन एंड दिस नेगेटिव चार्ज कैन शिफ्ट ओवर this carbon atom. Okay, and after losing proton it is known as acetylide. So acetylide is the name of this compound. अब मोस्टली जो इथाइन है या एल्काइंस हैं, ऑलवेज कीप इन माइंड देयर इज़ फॉर शोइंग द एसिडिटी कैरेक्टर इट मस्ट हैव एसिडिक प्रोटॉन. अगर आपके पास यहाँ पर एसिडिक प्रोटॉन नहीं होंगे, फॉर एग्जांपल इन दिस एल्काइन, इट्स मीन दैट इट विल नॉट शो एसिडिक कैरेक्टर बिकॉज इट डोंट हैव एनी प्रोटॉन टू लूज और टू बी अटैक्ड बाय द बेस. ठीक है, अब हम इसकी डिफरेंट एग्जांपल ले लेते हैं कि इस हाइड्रोजन को हम डिफरेंट मेटल से डिस्प्लेस कर सकते हैं. फॉर एग्जांपल वी आर टेकिंग ओवर हियर द सब्स्टिट्यूटेड एल्काइन. ठीक है, और इसको हम सोडियम एमाइड इन द प्रेजेंस ऑफ लिक्विड अमोनिया इसका रिएक्शन करें. ठीक है, एज देयर इज़ वन हाइड्रोजन टू रिप्लेस्ड बाय द मेटल एटम मेटल आयन, तो इसका मतलब है यहाँ पर हम कितने मोल लेंगे, 1 ही लेंगे. लेकिन अगर इधर 2 हाइड्रोजन होते, मीन यहाँ पर भी H होता, तो यहाँ पर हम 2 मोल लेंगे. तो लेट्स सपोज अगर हम इधर 2 हाइड्रोजन ले रहे हैं, मीन 1 हाइड्रोजन इज एट दिस साइड and another hydrogen at this side, in that way we will take 2 mole of sodium amide. Okay, this ammonia, this NH2 will react with proton. Okay, mean it's a basic part of this reactant. It will attack over this proton and these electron will be shift over this carbon atom. So what is the resultant? Here is the resultant, C triply bonded C acetylide, and it is having the sodium ion that is carrying the positive charge. Along with there is formation of
ammonia in this sample. Okay, so that is basically नोन एज सोडियम एसिटाइलाइड. ओके, यानी कि इसका स्टैंडर्ड नेम एसिटाइलाइड है, तो इसके पीछे हमने क्या करना है, मेटल आइटम का जो चार्ज है उसके अकॉर्डिंगली हम इसको नाम दे देंगे. ठीक है. ओके, लेट मी मूव टू द थर्ड रिएक्शन. ठीक है, एंड आई एम गोइंग टू राइट दैट थर्ड रिएक्शन ओवर हेयर. और इफ़ यू वांट टू रिप्लेस द हाइड्रोजन बाय अमोनियम या बाय सिल्वर और बाय कॉपर. ठीक है, तो दोनों ही केसेस में हम क्या कर रहे हैं, वीक बेस ले रहे हैं, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग इस तरह से वीक एसिड है, मतलब बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग एसिड नहीं है. तो आपके पास वीक एसिड है, तो वीक एसिड से को एसिडिटी शो करने के लिए वीक बेस की नीड होती है. ठीक है, देयरफॉर वी आर टेकिंग अमोनियम हाइड्रोक्साइड इंस्टेड ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड. ठीक है, तो फॉर एग्जांपल हमने सिल्वर नाइट्रेट इसके साथ लिया. ठीक है, और अमोनियम हाइड्रोक्साइड लिए, एंड वी हैव सब्स्टिट्यूटेड एल्काइन. ओके, दिस वन. नाउ व्हाट वुड हैपन ओवर हेयर, कौन सी बाय प्रोडक्ट्स आपके पास बनेंगी. तो लेट वी चार्ज गिव द चार्ज ओवर दीज पर्टिकुलर एटम्स. तो आपके पास ये कंपाउंड में हमने चार्जेस दे दिए. ठीक है, दोनों ही आयनिक कंपाउंड्स हैं. अब आपने देखना है कि दिस हाइड्रोक्साइड इज़ अटैकिंग ओवर दिस प्रोटॉन एंड दीज इलेक्ट्रॉन आर शिफ्टेड ओवर दिस कार्बन एटम. ठीक है, तो हमारे पास क्या फॉर्म हो गया, RC ट्रिपली बॉन्डेड C नेगेटिव. ओके, एंड Ag पॉजिटिव, सिल्वर एसिटाइलाइड. ठीक है, और रिजल्टेंट में हमारे पास क्या था, OH इज़ गोइंग टू अटैक ओवर दिस हाइड्रोजन एटम. तो हमारे पास क्या चीज़, एक और प्रोडक्ट फॉर्म होगी, दैट इज़ नोन एज वाटर. ठीक है, और बाकी रिमेनिंग क्या रहेंगे, अमोनियम and ये negative charge due to electrostatic force of attraction both will come near to one another and we will create ammonium nitrate compound. ठीक है, so these are the products for this reaction. And if we want to replace this particular proton by cuprous chloride, ठीक है, तो what we will do, for example we have this acetylene. Okay, and we want to replace both of these hydrogen by cuprous chloride, then we will simply take ammonium hydroxide. And now the question is, how many mole of ammonium hydroxide we will take during the course of chemical reaction. That is basically 2 mole. ठीक है, क्योंकि हमने 2 हाइड्रोजन को यहाँ से रिमूव करना है. इन द सेम वे वी विल फॉलो द सेम वे कि आपके पास वाटर फॉर्म होगा. ठीक है, अमोनियम क्लोराइड फॉर्म हो जाएगा. ठीक है, 2 इसके मोल प्रोड्यूस हो जाएंगे, और आपके पास दोनों ही तरफ CuC ट्रिपली बॉन्डेड CCu फॉर्म हो जाएगा. ठीक.